Today we will be continuing with lecture 2 only, the remaining parts. We had already discussed about the last 7 parts, that attempting to do things that are beyond your limits. जो काम तुसी अपनी एबिलिटी नाल नहीं कर सकते या जिन्हां नाल प्रॉब्लम होए वो काम नहीं करने. You are not supposed to do those works. So today we will continue with point 8. Point 8 is injuring yourself on the client by doing something that you are not assigned to do. ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਵੀਅਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡੇਂਜਰਸ. In that case also you will be who will be facing all these problems, not the company or the person who has appointed you. हमेशा काम वो वाला करना है आयब ने जिहड़े काम उन्होंने दिते जान, not that कि वो कुछ भी करे और कंपनी will pay for him. मान लो जिवें आयब नूं ट्रेनिंग के ड्यूरेशन नहीं सिखाया गया कि प्लंबर का काम भी वो कर सकता है, ठीक है. हम प्लंबर का काम तो बेसिकली प्लंबर ही करेगा, ओनली प्लंबर कैन डू हिज वर्क. डॉक्टर नूं तो असीं कहांगे नहीं कि तू प्लंबर का काम कर, ठीक है ना. हम जो प्लंबर नूं असीं मतलब किसी आयब नूं किसी हेल्पर नूं असीं ये कहा है कि तू आ साडी टैप ठीक कर, और वो टैप ठीक करते करते उहदे हाथ ते कोई इंजरी हो गई है या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਨੀਵਨ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਦ ਆਨਸਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦ ਕੰਪਨੀ, ਦ ਆਈਡ ਹਿਮਸੈਲਫ. Eyed himself, yes, because he is the person who knew everything, that he is not being taught to do these work. उन्होंने पता है कि उन्हें नहीं सिखाया गया, लेकिन उन्हें किया, हम किया तो फिर it is your fault, ठीक है ना. तो काम हमेशा वो करो जो थानू सिखाया गया है, जो थोड़ी ट्रेनिंग च थानू दस्या गया है. हुण थोड़े लोगों की ट्रेनिंग की है, what is the training for you people that I am giving you? What things I am teaching you in your lessons, in practical manner, in theoretical manner, that is the only thing a training session going for you, ठीक है. After that a practical exam is taken, उस एग्जाम के विच थानू जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, that is a training for you, ठीक है ना. हुण दिस इज़ नॉट कि थानू कोई मैकेनिज्म की ट्रेनिंग चाहिए है या थानू इलैक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग चाहिए. नो, you need a training for a nanny care trainer or an eyed care trainer. Nanny and eyed both are same things, but nanny is a main caretaker and an eyed is a person who assists nanny. nanny main है और उधर nanny का helper कौन है? eyed, ठीक है. Okay, then next it is failing to report unsafe working conditions that later causes injury to you and other home health items. ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ, for everyone it is dangerous if you do the work which is not assigned to you. You are doing a work that is not assigned to you. You are responsible for any sort of injuries. किसी भी टाइप की इंजरी ਲਈ ਤੁਸੀਂ खुद जिम्मेवार हो, कोई होर दूजा बंदा जिम्मेवार नहीं. ਹੁਣ ਆਈਡ ਦੇ
ਲੈਸਨ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ कि we are only supposed to do the work that is assigned to us। जो सानू दिता गया काम असी सिर्फ वही करना सी, उस तो अलावा कोई होर काम नहीं करना। बिकॉज the moment you try to do yourself any work it can cause an injury, it can cause a damage, and then you will be responsible, not your company, not the person who has appointed you as an idol। Is it clear? ਹੁਣ तक असी सिर्फ इन्ना ही पढ़े है कि जो आइड है उन्होंने और जो नैनी है उन दोनों के कामों च बहुत डिफरेंस है। जिवें क्लास च एक टीचर और एक असिस्टेंट टीचर, ठीक है, दोनों च डिफरेंस होंदा है। जिहड़ी टीचर है शी नोज अबाउट पर्टिकुलर थिंग ऑफ द क्लास, she knows that where her attendance register is kept, she knew that what sort of kids are there in her class, she knows that how much attention is to be paid to each and every child। But an assistant teacher will not be knowing these things in details। She might be knowing that where to keep the register, where to keep the books, where to keep the pen stand, but she will not be knowing that which child is to be given what sort of a requirement or what sort of a attachment, right। मतलब बच्चे की जिहड़ी ज़रूरत है वो बेसिकली वो टीचर देख सकती है, वो टीचर को पता होगा, बट असिस्टेंट टीचर को इस चीज़ का नहीं पता होगा। उवें आइड जिहड़ा है वो असिस्टेंट हेल्पर है, he is not a nanny। Clear? Any doubts? Anything which is not clear you can interrupt me। Is it clear to all? Is it clear to all? Yes or no? Okay, so today we will be reading about the new thing, that is good personal health and hygiene। Now what is personal health and hygiene? Can anyone tell me about a personal health, personal hygiene? Ranjit ma'am, can you tell me? Yes Ranjit ji, can you tell me that what is a good health and a good hygiene means? Is everybody getting my voice? Okay Harman, let me know ki what is good personal health and hygiene? Okay, yes, personal health and hygiene means tidying up your body, अपने आप को साफ सुथरा रखना। To wash your hands on every every meal you are having। कुछ खा रहे हो या कुछ खा चुके हो, both the ways you need to wash your hands। नेल्स थोड़े पूरे, अगर तुसी बड़े नेल्स रखे हैं देन कीप केयर कि वो गंदे ना हो, डस्टी नेल्स ना हो। इफ दे आर डस्टी देन कट ऑफ योर नेल्स। इफ यू आर वेरी हाइजीनिकल, वेरी हाइजीन कॉन्शियस पर्सन, यू विल नेवर फॉल सिक। बट द थिंग इज कि यू हैव टू सी कि तुसी किवें दी अपनी हाइजीन को मेनटेन कर। बोलन में तुसी बहुत हाइजीन हो, बट खाना खा के
जो थोड़े हाथ गंदे हुए हैं, ठीक है, you have not washed your hands and they are full of messiness, and you are saying that I am a hygienical person. In what manner you are a hygiene person, hygiene clear person? You are not a hygiene clear person, right? You have cooked food और आटा हाथ पे लगा होया, उसे हाथ नाल तुसी खाना खा भी रहे हो और उसे हाथ नाल तुसी बाकियां को भी सर्व करा रहे हो, फिर तुसी हाइजीन क्लीयर किवें हो? हाउ आर यू अ हाइजीनिकल पर्सन? थोड़े हाथ तो गंदे और उही गंदे हाथों नाल तुसी अपने अंदर भी डाल रहे हो। हुण जिवें मैं उस दिन दस्सिया सी कि जे मैं वॉल नूं टच कीता है, इफ आई हैव टच द वॉल, I need to wash my hands that very moment. Reason, जिन्नियां भी बीमारियां ने, जिन्नियां भी, the number of diseases that we come to hear, they are only and only through our stomach. And in stomach, how do we get diseases? Through our mouth. साढ़े हाथ गंदे है, गंदे हाथों नाल खाना खाया, मुँह च गया, पेट दी इन्फेक्शन, नेचुरली वी विल फॉल इल, वी विल फॉल सिक, ठीक है। सो अ होम हेल्थ एंड आई मस्ट ऑब्जर्व द पर्सनल हाइजीन स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड ऑफ एनी हेल्थ टीम मैंबर। किसी भी घर के किसी भी मैंबर का हाइजीन का पूरा जो छोटे बच्चे ने, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अपने वॉशरूम भी उन्होंने बेड पे ही करना है। इन्फेंट बेबीज डू नीड टू टेक केयर, बट जो अपन उन्होंने डायपर आफ्टर एवरी इंटरवल नहीं चेक करते, देन दे आर गेटिंग इन्फेक्टेड। इन्फेक्शन तो उन्होंने कैच हो ही रही है ना, जब उन्होंने इन्फेक्शन कैच हो रही है तो फिर वो कितों अगे करन? बैक्टीरिया तो हैगा है ना, चाहे उन्होंने मोशन पास किया, चाहे उन्होंने टॉयलेट विच किया, वॉट एवर द थिंग इज, बैक्टीरिया तो बच्चे के आस पास ही है ना, बैक्टीरिया कितने दूर तो नहीं गया। पर बच्चे को जब तक असी घंटे 2 घंटे तक क्लीन करांगे तो उस टाइम तक ये होगा कि बच्चा ऑलरेडी बैक्टीरिया के नाल भर चुका होगा, ही विल बी कवर्ड विद बैक्टीरिया। और जे उन्होंने कोई यूरिनल इन्फेक्शन या कोई होर प्रॉब्लम हो गई, देन वी थिंक कि असी तो डायपर जल्दी चेंज करता सी, देन बच्चा किवें बीमार रह गया? वी डोंट रिमेंबर एट दैट टाइम दैट वी इग्नोर्ड हिम फॉर दिस मच लॉन्ग पीरियड। Immediately change the diaper of your ward when he or she has done upness in the diapers. डायपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਸ ਅਪ ਹੋਇਆ डायपर, within seconds change कर। change ਕਰਨ ਨਾਲ what will be the result? That your child or the place where you are working, that child is cleaned up. He or she is not facing with any hygienical problems. कोई स्टमक इन्फेक्शन, कोई यूरिन इन्फेक्शन, है ना, कोई फीवर, कोई टाइफाइड, कोई डायरिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गुड पर्सनल हेल्थ मीन्स कि इफ आई एम अ हाइजीन क्लियर पर्सन, आई विल डेफिनेटली सी कि मेरे आस पास का सारा एरिया क्लीन हो। इज इट ट्रू? है ना, अगर असी साफ सुथरे नहीं हाँ, हुण एक साइड पर असी लैने कि वी आर मिडिल क्लास फैमिली पर्सनस एंड वी ऑल आर वेरी हाइजीनिकल क्लियर पर्सनस, ठीक है। सेकेंडली आई से कि वी विजिट टू अ स्लम एरिया, झुग्गी झोंपड़ी वाले एरिया च जाओ, कैन यू इवन स्टैंड फॉर अ सैकेंड ओवर देयर? तुसी उस एरिया एक सैकेंड भी खड़े हो सकते हो स्लम एरिया जब तुसी जाने हो? दैट पैथेटिक स्मैल किल्स यू। तुसी उत्थे नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वो स्मैल थोड़े सिर नूं चढ़ती है और तुसी ये सोचते हो इत्थे लोग रहिंदे भी किवें, बिकॉज दे आर इन हैबिट ऑफ लिविंग विद दैट पर्टिकुलर एरिया।
that particular health, that particular hygiene. ठीक है? So maintaining good health of yours, of your client, and of your client's ward if you are taking care of, then you have to be very conscious. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈਜੀਨ ਤੇ ਕਦੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। Is the hygiene section clear? Harman, any doubts? Okay. Any doubts to anyone? Please clear it up. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਸਿਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ ਪੀਪਲ। ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਫੁਲੀ ਡਰੈਸਡ ਅਪ, ਬਟ ਇਫ ਆਈ ਕਮ ਇਨ ਅ ਮੈਸੀ ਵੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ, will you be feeling fresh enough to take classes from me? I should get this. No. No. Anyone else? मैं बहुत गंदी हाँ, मैं नहा के नहीं आई, मैं ब्रश नहीं किया है, बस मैं सुत्ते हुए उठ के सीधा अकैडमी आ गई। और बंदे दे नाल तुसी किवें डील करोगे? मतलब तुसी चाहोगे कि मैं तुहानू पढ़ावां? Yes, you will feel sleepy and you will say कि we don't want to continue with this person, right? Nobody likes to continue with that such person who is not hygienically clean. ਹੁਣ मैं ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ पूरा फ्रेश होके स्मार्ट लुक लेके फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने आके बैठते हैं कि if I feel attentive, if I feel alert, then only my class will sit alert. मैं ऐਵੇਂ बैठी रहूँ, पढ़ा लो, will you be able to study? No. You all will say कि आज तो मैडम का मूड नहीं, असी की पढ़ ली है, ठीक है ना? So even if any job you are working and you are not attentive at your job, the person who will see you will not accept you for more than 2 minutes. He'll say कि go back to your home, get freshen up and then come. Otherwise take a leave and go. जॉब तो तुसी उदों ही आओगे, उदों ही बैठोगे जब तुसी खुद फ्रेशन अप हो, मेंटली भी फिजिकली भी तुसी हाथ क्लीन होने चाहिए। दिमाग तुहाडा घर है, बैठे तुसी अपनी जॉब ते होए हो, तुसी कित्थों जॉब दा कर लोगे? चढ़ी तुहानू नींद हुई है, काम तुसी कित्थों कर लोगे? नींद दे विच कोई बंदा काम कर सकता है जब बहुत एग्जॉस्टेड हो, यू आर हाईली एग्जॉस्टेड, तुहाडा बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने ते, क्या तुसी अपनी जॉब ते बैठ के अपना काम कर सकते हो? नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड फ्रेशनेस, यू नीड स्ट्रेंथ। काम करने लिए ताकत तो चाहिए है ना, उन्होंने ताकत कित्थों होएगी? जब तुसी खुद ही फ्रेशन अप नहीं हो, तुसी नहीं अगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते, राइट? सो बीइंग अ गुड हेल्थ कॉन्शियस, you should always see that everything of yours is perfect. Everything of yours is perfect in a perfect manner. You are completely hygiene person when you are at your workplace. तुसी घर च बैठे, तुसी जिवें मर्जी बैठो। टीचर्स गो टू स्कूल, अगर टीचर ही अटेंटिव नहीं है, टीचर का ही मूड नहीं है पढ़ाने, क्या वो बच्चों को पढ़ा लेगी? हुण जे मैनू पता है कि मैं जॉब ते जाना है, ठीक है,
मैं जॉब ते जान लई सब तैयार भी हो जावां, सब कुछ हो जावां, लेकिन मेरा मन ही ना करे पढ़ाने ते, क्या मैं अपने घरों भी निकल सकती हाँ? मेरी हेल्थ ही नहीं अलाउ कर रही होगी जी। या मैं जल्दी जल्दी च आ गई कि हाँ लेट हो रही हाँ, फटाफट जावां, मैं कॉम नहीं की, मैं बहुत गंदे बिखरे जे बालों नाल आई, मैनू देख के आई कैन से हाफ ऑफ यू विल स्टार्ट लाफिंग कि अच्छा अलीमा में होया कि है ना, बिकॉज इट इज़ दैट कि यू नो द पर्सन हु इज कमिंग टू द जॉब, he or she is already in a perfect look and we try to see that person in that look only, whether in official dresses or in semi formal dresses, but we do like to see that person in a clean hygiene manner, ठीक है। हुण हाइजीन का इवन तुसी इट इज़ नॉट कंपलसरी कि हाइजीन इज़ दैट ओनली आई हैव नॉट टेकन बाथ, it is in more ways also, like ब्रश नहीं किया, किसी के मुँह चो बहुत स्मैल आ रही है, तुसी उस बंदे के नियर बाय भी नहीं स्टैंड कर सकते, या मैं एक्सेस च कोई ऐसे बंदे को मिलना जिन्हें बहुत स्मोक की हुई है या एक्सेस च ड्रिंक की हुई है, तुसी उहदे सामने भी नहीं खड़ सकते, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो पर्सनल हाइजीन फंडा। If you are clean, if you are neat and tidy, everything is perfect, कोई चक्कर नहीं, तुसी बंदे दे कोल 10 घंटे भी खड़े रह सकते, बट जे उसी इंसान को पसीने की स्मैल आवे या अजीब जी गंदियां गंदियां बदबू आन, क्या तुसी खड़े हो सकते हो? With damn dirty smells can you stand with a person for 2 minutes even? अच्छा गौशाला जाने, ठीक है, गौशाला दे नीयर बाय एरिया जिहड़ा हुंदा है, तुसीं उत्थे कितनी देर खड़े हो सकते, जिथे बेसिकली काउज नूं रखिया जाता है, डंगरां नूं रखिया जाता है, उस एरिए च कितनी देर तक तुसीं खड़े हो सकते हो विदाउट कवरिंग योर माउथ? विद ऑनेस्टी आई नीड एन आंसर। Any answer from anyone? Okay, Ranjit ji, you give me answer. Can you stand in that particular zone for that? You can't stand क्योंकि वो मतलब जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि आप नहीं खड़े हो सकते, एंड दैट इज ट्रूथ कि तुम नहीं खड़े हो सकते। जो तुम खड़े होंगे यू विल फील लाइक कवरिंग योर माउथ और यू विल से कि वी वांट टू गो, क्योंकि मैं खुद भी गौशाला जब जानी हाँ आई हार्डली स्टैंड देयर फॉर 1 or 2 minutes, मैं इस तो ज़्यादा नहीं रुक सकती, क्योंकि मैंने पता है कि मैंने अंदरों का ब्लड शुरू हो जाती है, मैंने वो स्मैल चढ़ती, एंड थिंक दैट अ पर्सन 24/7 सिटिंग ओवर देयर, he is such a familiar to that smell, वो कितना ज़्यादा उस स्मैल में लैके फेमिलियर होता है कि उत्थे सारा दिन 24 घंटे 24/7 उत्थे बैठा रहता और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज हाइजीन, राइट? सो नाउ yes, anyone wants to say something? Okay, now next is skills of observation. Now what is the meaning of skills of observation? Observation, हाँ जी बोलो आप, हरप्रीत जी बोलो। That's what I'm saying है कि at a certain time of your life you feel, ठीक है ना, मतलब छोटे होंदे
तुसी देख हाँ time to time it change you are now not a regular person who is sitting there, right? You have changed your way of living, way of standing, right? You were familiar with those smells, but now can you stand for 1 minute even? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ हाँ because nowadays you can't stand there for even a single minute. That is कि you feel interior complex is actually ਅਸੀਂ ਹੁਣ बेसिकली कहिए तो प्रॉपर इंडो वैसटर्न स्टाइल ਨੂੰ अपना चुके हैं और इंडो वैसटर्न स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we think that these all stuffs are something very smelly, very unhygienic, although जबकि जे मैं कहा ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ मतलब smell है that is basically not a smell, it is a medicine also, है ना? ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕਾਓ ਡੰਕ ਚੋ ਔਰ ਗਊ ਮੂਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ so it is all a natural thing now, right? So Harpreet ji, be relaxed. Is everything calm? Okay, क्योंकि ये topic now she needs to go to washroom. Okay, now this is that thing that we were talking all about personal hygiene and health. ठीक है पहले असी जिमें रहंदे सी हुण असी उस सिचुएशन च नहीं रह सकते ठीक है ओके स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हुण स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ है इज गुरदीप प्रेजेंट टुडे इन द क्लास okay no issues Gurdeep, do you know what is skills of observation? It is on page number 15, skills of observation. Okay. Fine. Even you can say skills of observation is that a person is sitting in front of you. ठीक है मैंने अभी बोला था कि जो बंदा मान लो कि सुबह अपने वर्क पे गया है और वो नहाया नहीं हुआ बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में आया तो हाउ विल यू एनालाइज दैट पर्सन in which manner are you going to analyze? You will be analyzing that person as a sick or uncomfortable person. तुसी यही सोचोगे ना या तो बीमार है या फिर मेंटली सिक है कि ये अपने वर्क प्लेस पे एवं आ रहे ठीक है दिस इज योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੀ ਥਾਟਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ we keep thoughts that the person who is being at the job should be tidiest should be smart looking then only we can continue work with that person ठीक है साड़ी देखन दी शक्ति नू भी असी सुनन दी शक्ति नू बोलन दी शक्ति नू we can take it as skills of observation now here we are having seeing
कोई चीज़ देखना, seeing is basically that it can analyze anything। जब तुसी देख रहे हो तुसी कोई भी चीज़ नूं ध्यान नाल देख के सोच के उहदे ते रिएक्ट करो। Look at the client carefully, watching for any changes since your last visit। हुण तुसी लास्ट विजिट तक जब अपने क्लाइंट को देखिए, सपोज आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, एंड आई हैव विजिटेड अ पेशेंट्स हाउस, राइट। जब मैं लास्ट टाइम उस पेशेंट को मिली सी तो उस पेशेंट की सिचुएशन कुछ ठीक नहीं सी, एंड आई सेड द फैमिली that this patient is supposed to be taken to a particular hospital now। Being at home, that patient is not getting the proper treatment, we need to take him to the hospital। The very next day I had again visited, or after 4-5 days I had again visited their place and I saw the patient and there was a great difference। मतलब उन्होंने फैमिली मेंबर्स ने इन्नी तो केयर की कि वो बंदा या बंदी जो बहुत बीमार सी वो काफ़ी हद तक रिकवर कर गए, ठीक है ना। रिकवर हुए, मेरा व्यू ऑफ विजन क्या होया कि आई चेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट, देयर रिकवरी मोड। आई चेंज्ड माई थेरेपीज, माई वर्ड्स, आई चेंज माई वर्ड्स। नहीं, तुसी घर ही रखो इनू और तुसी घरे अच्छी तरह सेवा करो, शी विल बी फाइन या ही विल बी फाइन, ठीक है। सेकेंड इज हियरिंग, मतलब असी सुन की रहे हैं। लिसन टू द क्लाइंट वॉट इज बीइंग सेड। तुसी हुण अपने क्लाइंट को ध्यान नाल सुनना है कि वो बोल की रहा है। मान लो उन्हें कहा कि आई नीड अ कप ऑफ कॉफी, तुसी लिया के चाह पिला दो, या तुसी इग्नोर करता, तुसी सुनिया ही नहीं। वेयर इज योर प्रेजेंस? फिनिश्ड। योर सीनियर और योर एम्प्लॉयर विल से दैट इनू तो कुछ समझ ही नहीं आती, मैं इनू रख के की करा, मैं कॉफ़ी मंगी इन्हें चाह दे, मैं पानी मंगिया ये जूस ले आया। मतलब जो चीज़ मैनू चाहिए, द थिंग विच आई नीड टू ड्रिंक या विच आई नीड टू ईट, I am not getting that thing. What I am getting is the different things। How is being said। कई बार कोई खान पीन की चीज़ नहीं होती, कई बार कोई डिटेलिंग्स होंदियां ने बच्चे की हेल्थ के रिलेटेड या जिस पर्टिकुलर पर्सन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ एज एन आइड ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ हेल्थ ਦੇ रिगार्डिंग, या ਤੁਹਾਡੀ मतलब जिथे ਤੁਸੀਂ काम कर रहे हो उस एरिया के अकॉर्डिंगली कई बार कई गल्लां ऐसी होंदियां जिहड़ियां तुसीं बहुत स्लो सॉफ्ट वॉइस च कहनियां होंदियां। तुहाडे एम्प्लॉयर ने, तुहाडे बॉस ने तुहानूं गल तां कहनी है, बट ही और शी डजंट वांट्स टू सिट इन फ्रंट ऑफ 10-20 पीपल, ठीक है। और वो तुहाडे कंन च आके भी नहीं कह सकते हौली दे नाल, फिर वो तुहानूं बहुत आराम नाल सॉफ्टली गल नूं कहंदे। जब उन्होंने वो गल तुहाडे सामने रखी है, then it is you who has to see that in which manner had this thing been said to me। मैनू